Yeah. And Shivani, Yes, you sir. kindly take the proceedings. Okay, sir. Okay. Good afternoon, everyone, and welcome to today's webinar. Thank you all for giving us your precious time and for joining this webinar. Let me briefly introduce myself. This is Shivani Singh from Government Women's Polytechnic Bhopal. I'm a first year student from Architecture and Interior Designing Department. I'm delighted to be here today to tell you that Training and Placement Cell, Entrepreneurship Development Cell, and GWPC has organized this communication skill workshop. Our today's topic is netiquettes and effective email writing. The objective of our topic or the program is to gain awareness on the professional guidelines in presenting oneself in the internet. And today's expert is Dr. Gitanjali Jha. Before we start, let me tell you one thing. If you have any questions during the presentation, just write it down in the chat box. And please maintain discipline and don't do any kind of mischievous or unwanted activities. Now I'll hand it over to Dr. Vinod Gupta, sir, our coordinator and the program head. Over to you, sir. Thank you very much, Shivani, and welcome to all the wonderful students and the people who have joined us from not only from my college, that is Government Women's Polytechnic College, but from other colleges also across Madhya Pradesh. Uh, First of all, very sorry, my camera is not working properly. That's why I am not visible. But yes, I am very much audible. But my visibility and audibility hardly matters because today we are totally focused on Dr. Gitanjali's audio and video, who is going to share some good and insights which are full of learning as far as netiquettes and various other things related to communication skills is concerned. Communication skills workshop is a very amazing concept in which we are trying our level best to correlate the activities by our experts, and those activities are directly related to the course outcomes and learning outcomes which are prescribed by Rajiv Gandhi Technical University in the courses of the students. So the expert lecture which we are organizing today is of course focused on your curriculum. So may I request and instruct all the students to kindly sit with paper and pen, copy and pen, so that they will be able to understand. As far as the students of Government Women's Polytechnic College is concerned, after attending, they should attend this वर्कशॉप केयरफुली. एंड मैडम जो भी आपसे बात पूछें, सवाल पूछें या जो भी बात करें, उसका आप जब जब ऐसा लगता है तो आप जवाब दें. मैम जो एक्टिविटी करवाएं वो अपने अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे करें. और इस वर्कशॉप के बाद आपको एक 1 पेज का नेटिकेट्स पर असाइनमेंट सबमिट करना है, वेर यू विल हैव टू राइट 1 पेज अबाउट नेटिकेट्स और जो भी चीजें आपने आज के इस प्रोग्राम में सीखी है. सो विद दिस आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल दी स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स एंड डॉक्टर गीतांजलि झा in this communication skills workshop. Over to you, Shivani. Thank you, sir. Now, without further ado, we will turn the time over to Dr. Gitanjali Jha, our presentator, trainer, and DCIM expert. She is a research partner with iMature. Ma'am has done BHMS, MA Psychology and Counseling. Ma'am is an art therapist and psychology teacher. Ma'am has came into DCIM training through iMature while working as a counselor in Delhi Public School and Sagar Public School. In Bhopal, she came across many students who were struggling with the challenges in the internet world post. So she decided to empower herself in order to help the young adults to make better use of digital world. She is a believer of holistic health and having expertise as a doctor, counselor, and DCIM expert helps her to facilitate people in all-round well-being. Now I'll hand it over to Dr. Gitanjali Jha. Over to you, ma'am. Thank you so much, Shivani, for this lovely introduction. And thank you so much, sir, for having me here today. I'm really, really grateful and very happy to be here. This is a topic which is really close to my heart, and I was very happy when I got the chance to speak about it.
So as sir has already instructed, Asha, first of all, can somebody please revert? Am I audible clearly? Yes, ma'am. Very Yes, much. Okay, thank you so much. So unfortunately, my laptop is still acting up, so I'm happy that I had a backup in my phone, and I'm going to present my meeting with the phone itself. You will be able to see a presentation on your screens, and because we were a little short of time, as in the 2-hour workshop was reduced to one. That's why rather than doing a very exhaustive activity, I will like to interact with you upon some things that I instruct during the workshop. Rather than instruct, I should say suggest, because it's your choice to implement it, but I would very strongly suggest you to use these techniques which I'm telling you today for improving your own communication skills and your online presence. So without taking much time, I'll just start presenting my screen. And in case if there is any question, I would request Shivani to read the chat box. I would be very happy if you can just write your questions in the chat box so that. Sure, ma'am. Thank you so much. Okay. Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. So, starting with, I don't know why it's showing these speaker notes. There are no notes as such. Anyway, I hope this is also visible for everyone. Yes, ma'am. It's yes, visible. ma'am. Okay. Great. Thank you so much. So, first of all, the topic of the workshop, netiquettes and effective email writing. तो इफेक्टिव ईमेल राइटिंग तो आप सब लोग समझते हैं. आई होप एवरीबडी इज ओके अगर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूं. कंफर्टेबल होता है सबके लिए, राइट? हाँ मैम. यस मैम. Yes, मैं ma'am. रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि आप लोग जो जवाब देना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में लिखें बीच बीच में, और जब इंटरेक्शन का टाइम आएगा तब मैं आपको बोलूंगी कि आप माइक ऑन करके अपना जवाब दें, राइट? थैंक यू सो मच. तो सबसे पहले, क्या कोई मुझे बता सकता है कि वो नेटिकेट से क्या समझते हैं? ये जो शब्द है नेटिकेट, ये डिक्शनरी वर्ड नहीं है, एक नया सा शब्द है. क्या कोई बता सकता है? अभी आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं. Ma'am, internet etiquettes. Absolutely correct. A round of applause for you. Very good. Simply Thank speaking, internet etiquettes. तो इंटरनेट एटिकेट्स एक टर्म है, एक वर्ड है जो कि DCIM, डिजिटल सिटीजनशिप एंड इंटरनेट मैच्योरिटी के अंदर आता है. अब डिजिटल सिटीजनशिप एंड इंटरनेट मैच्योरिटी, ये स्क्रीन पे तो कुछ कुछ लिखा हुआ है. डिजिटल सिटीजनशिप मीन्स योर पार्टिसिपेशन इन द डिजिटल वर्ल्ड, and internet maturity means your understanding of the purpose of internet and displaying maturity in all online activities. ये तो लिख दिया डेफिनेशन के तौर पे, पर क्या इससे आपको कुछ समझ आ रहा है? क्या आप सोच सकते हैं कि हम DCIM में क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? कोई बता सकता है मुझे? जस्ट गेस करिए. यस मैम. डिजिटल मीन्स जो भी इंटरनेट में अपन अपना बिहेव करते हैं, मीटिंग्स वगैरह, उसमें आप जो अपना बिहेव कर रहे हैं उस हिसाब से डिसाइड होता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. आप काफी नजदीक हैं, काफी सही समझा आपने. क्या और कोई कुछ पता चाहता है इस बारे में? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, टेस्ट नहीं लेते, सीधे बातचीत करते हैं, है ना? तो डिजिटल सिटीजनशिप, सबसे पहले इस पूरे शब्द को डिजिटल सिटीजनशिप एंड इंटरनेट मैच्योरिटी, इसको तोड़ के देखेंगे अपन, ठीक है ना? वर्ड को, पूरे फ्रेज को तोड़ के देखने में, एक एक शब्द को देखने में ज्यादा आसानी से समझ आएगा. सो सिटीजनशिप, सबसे पहले जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो हम किसी सिटी के सिटीजन हो जाते हैं. अभी हम डिजिटल कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ सिटीजनशिप के ऊपर फोकस कर रहे हैं. तो हम किसी सिटी के सिटीजन होते हैं, कंट्री के सिटीजन होते हैं, हमारी एक नेशनलिटी है, हम एक सोसाइटी में उठते बैठते हैं, ठीक है ना? तो हम एक सिटीजन तो हैं,
और हम वो सिटीजन कैसे बने? बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न इन दैट प्लेस। हमारा उस पर कोई जोर नहीं था। हमारी पैदाइश किसी कंट्री में, किसी सिटी में, किसी स्टेट में हुई एंड वी ऑटोमेटिकली बिकम सिटीजन्स ऑफ दैट प्लेस। इसी तरीके से जैसे ही आपके पास एक मोबाइल नंबर आया या एक व्हाट्सएप का आपने ग्रुप बनाया, एक अकाउंट बनाया, एक फेसबुक का अकाउंट बनाया, एक जीमेल अकाउंट बनाया, तो आप एक डिजिटल वर्ल्ड, एक वर्चुअल वर्ल्ड, इंटरनेट वर्ल्ड के सिटीजन बन गए। और हुआ क्या कि जिस तरीके से आपके बॉर्न होने पे, आपकी पैदाइश पे आपका कोई जोर नहीं था, उसी तरीके से आप ना चाहते हुए भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का, दैट इज द वर्ल्ड वाइड वेब, उसका हिस्सा बन गए एक डिजिटल अकाउंट आते ही साथ। राइट? आपने शायद कभी इस बारे में बहुत सीरियसली सोचा नहीं होगा कि ओ, मैं एक फोन नंबर ले रहा हूँ, उसमें अपना आधार कार्ड दे रहा हूँ या एक व्हाट्सएप का अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने वाला हूँ। लेकिन इन दोनों चीजों के बीच में बहुत सिमिलैरिटी है। जिस तरीके से हम किसी सिटी में रहते हैं, किसी कंट्री में रहते हैं, उसके कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, सेम वे जब हम डिजिटल सिटीजनशिप बन जाते हैं, ले लेते हैं, डिजिटल सिटीजन बन जाते हैं, तो जो डिजिटल कम्युनिटी है, जो इंटरनेट कम्युनिटी है, नेटिकेट जो हमने बात किया, हमने वो इंटरनेट के नेटिकेट्स सीखने पड़ते हैं और फॉलो करने पड़ते हैं। अदरवाइज क्या होगा? दो तरीके के सिटीजन्स होते हैं, है ना, एक गुड सिटीजन और एक बैड सिटीजन। गुड सिटीजन वो होता है जो कि रूल्स फॉलो करता है, जो सोसाइटी के लिए अच्छे काम करता है, जो कंस्ट्रक्टिव होता है, जो हेल्पफुल होता है। और बैड सिटीजन वो होता है जो रूल्स तोड़ता है, जो दूसरों को परेशान करता है और केओस फैलाता है। सिमिलरली जैसे कि सिटीजन दोनों ही है ना, लेकिन एक अच्छा कर रहा है और एक अच्छा नहीं कर रहा है। सिमिलरली इंटरनेट वर्ल्ड पे में भी दो तरीके के सिटीजन्स आपको मिल सकते हैं, वन हु आर फॉलोइंग द रूल्स एंड वन हु आर नॉट। So, rather than being a person who is not following the rules, let us be the person who is following the rules. And the importance of this we will understand shortly when we discuss internet maturity. I hope कि डिजिटल सिटीजनशिप का मतलब सबको क्लियर हो गया होगा। अभी दोनों चीजें कंपेयर करके देखने से आई होप की क्लैरिटी आई होगी कि जैसे आप एक सिटी और एक कंट्री के सिटीजन हो, सेम वे आप डिजिटल वर्ल्ड के या इंटरनेट वर्ल्ड के भी सिटीजन हो। अब आप सभी ने गूगल मीट और ज्वाइन किया, ईमेल अकाउंट से ज्वाइन किया होगा, 20 से ज्यादा नहीं है, 20-30 कहाँ से आ रहा है कॉलेज में। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। यस मैम, यस, कैरी ऑन प्लीज। हाँ जी, अब ठीक है, सिटीजन बन गए। अब इंटरनेट मैच्योरिटी के ऊपर आते हैं। इंटरनेट मैच्योरिटी का मतलब वही है कि आप एक गुड डिजिटल सिटीजन बने और जो इंटरनेट का दुनिया है, इंटरनेट का वर्ल्ड है, उसको रिस्पॉन्सिबली, सिंसियरली और अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। आप इंटरनेट का पर्पस समझें। इंटरनेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फेसबुक में अपनी फोटोज डालना, दोस्तों के साथ चैट करना, कोई पिक्चर देख लेना या यूट्यूब देख लेना। इंटरनेट का पर्पस बहुत बड़ा है। Internet is not only there for entertainment, but it is there for infotainment. If somebody wants, they can note down this word. Infotainment means information gathering plus entertainment. जब टेलीविजन इजाद हुआ था तो उसका पर्पस भी इंफोटेनमेंट ही था, फिर धीमे धीमे वो एंटरटेनमेंट का एक साधन बन गया। सिमिलरली आजकल हर इंसान इंटरनेट पे है, ज्यादातर लोग इंटरनेट पे हैं, शायद इंटरनेट की पॉपुलेशन हमारे देश की पॉपुलेशन से भी ज्यादा होगी। और ये सारे लोग इंटरनेट मैच्योर्ड नहीं हैं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज द यूथ ऑफ द कंट्री, एज फ्यूचर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि हम मैच्योर्डली खुद भी इंटरनेट यूज करें और दूसरों को भी इसकी मैच्योरिटी सिखाएं। इंटरनेट मैच्योरिटी क्यों जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि जैसे रियल वर्ल्ड में आपको फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हर तरीके का थ्रेट होता है, इंटरनेट पे भी अगर आप रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं करते या कोई और रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं करता, आपको ये सारे थ्रेट्स हो सकते हैं। बट दैट इज वन पार्ट ऑफ इंटरनेट मैच्योरिटी, टू कीप योरसेल्फ सेफ and to keep others safe also. Another part of internet maturity, as in why you should be internet mature, comes here. अगर आप इंटरनेट मैच्योर बन जाते हैं, मतलब इंटरनेट का अच्छे तरीके से सदुपयोग करना सीख जाते हैं, तो आप इंटरनेट का मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं।
दुनिया की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, कोई जो भी हो, सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो भी है दुनिया की, वो भी इंटरनेट पे जो मटेरियल मौजूद है उसके सामने एक किताब के बराबर ही है, क्योंकि इंटरनेट इज इनफाइनाइट। उसके ऊपर इतना सारा सामान मौजूद है आपकी हेल्प के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि आप सोच भी नहीं सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन उसका मैक्सिमम एडवांटेज लेने के लिए, ये समझने के लिए कि हाँ वाकई मेरे लिए ये बहुत यूजफुल है, आपको इंटरनेट मैच्योर बनना पड़ेगा। और उसके अंदर क्या क्या टिप्स आती हैं वो हम इस वर्कशॉप में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत अलग सा ही चैप्टर है। और शायद अगर फ्यूचर में हमें मौका मिलता है या रघु सर आपके साथ होते हैं तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे आपस में। दूसरा एडवांटेज इंटरनेट मैच्योर बनने का, जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप खुद की सेफ्टी कर सकते हैं, अपने लव्ड वंस की सेफ्टी कर सकते हैं। और तीसरा है ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज। आप लोगों ने एक फ्रेज सुना होगा कई बार, द वर्ल्ड हैज श्रंक, दुनिया छोटी हो गई है। कैसे छोटी हो गई दुनिया? अर्थ का साइज तो छोटा नहीं हुआ है, ना ही सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में आके एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं। स्पेस में छोटा नहीं हुआ है दुनिया, लेकिन इन मैनर ऑफ कनेक्शन एंड कनेक्टिविटी दुनिया छोटी हुई है। विच मीन्स मैं आज इस समय झांसी में बैठी हूँ और मैं भोपाल के बच्चों से, और इनफैक्ट शायद ऑल ओवर मध्य प्रदेश के बच्चों से बात कर पा रही हूँ, या मैं यहाँ बैठे बैठे लंदन में अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकती हूँ, या फिर मैं लिंक्डइन के थ्रू, आई थिंक सम पीपल माइट नो, कुछ लोग जानते होंगे लिंक्डइन के बारे में। लिंक्डइन फेसबुक के जैसा ही एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन चैनल है, एक सोशल मीडिया है, लेकिन रादर देन सोशल मीडिया वो प्रोफेशनल मीडियम है लोगों से कनेक्ट होने का। आप अपनी उस पर प्रोफाइल बनाकर अपना रेज्यूमे डाल के आपकी क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशंस, एक्सपीरियंसेस सब कुछ उसके ऊपर डाल सकते हैं, एंड इट इज लाइक अ रेडी रेज्यूमे। आपका एक सीवी, आपका एक प्रोफाइल है जिसमें आपने क्या क्या काम किया है वो सब उसके अंदर आप डाल सकते हैं। और जो भी ऐसा एम्प्लॉयर होगा जो आपके जैसे किसी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वाले इंसान को हायर करना चाहता होगा, वो लिंक्डइन में आपकी प्रोफाइल देख के आपको कांटेक्ट कर सकता है। और वो इंडिया का भी हो सकता है, वो आपकी सिटी का भी हो सकता है, वो किसी और देश का भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं जिन्होंने लिंक्डइन के थ्रू बहुत बहुत ही बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटीज पाई हैं। तो इंटरनेट मैच्योरिटी का ये भी एक एस्पेक्ट है कि हम ये समझें कि सिर्फ मजे के लिए और चैटिंग करने के लिए नहीं, रादर अपनी प्रोफेशनल प्रेजेंस बताने के लिए और अपना करियर फर्दर करने के लिए भी इंटरनेट आपकी बहुत मदद कर सकता है। नेक्स्ट इज एक कंप्लीट एजुकेशन 21st सेंचुरी के हिसाब से क्या है। उसमें ये 4 चीजें आती हैं। बॉटम से देखना शुरू करें। एकेडमिक नॉलेज सबसे पहले, पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, लिटरेट होना जरूरी है, आपको 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, एकेडमिक नॉलेज लेनी ही पड़ेगी। लेकिन आज 21वीं सदी में ये काफी नहीं है। पहले शायद 20 साल पहले, 25 साल पहले ये काफी होता होगा, लेकिन आज के जमाने में अगर आपको हर किसी स्मार्ट व्यक्ति से कंधे से कंधा मिला के चलना है तो आपको उतना ही या उससे ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा। और वो स्मार्टनेस हमें देते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके अम्ब्रेला में हम आज ये वर्कशॉप कर रहे हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन स्किल्स, जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स का ही एक हिस्सा होता है। आप अपनी बात कितने इफेक्टिवली, कितने कम शब्दों में किस तक पहुंचा सकते हैं, दैट इज सेल्फ एक्सप्रेशन, राइट, एंड इट कम्स अंडर कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड लास्ट इज पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी कैसी है? और पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन के इधर उधर घूम रहे हैं, दैट इज नॉट पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मीन्स द कॉन्फिडेंस with which you portray yourself and the smartness of your thoughts। क्या आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड है? क्या आपके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं? क्या आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है? क्या आप पोलाइट हैं? क्या आप लोगों के साथ इंटरेक्ट अच्छे से करना जानते हैं? क्या आप जानते हैं किस समय में क्या बात कहनी चाहिए? ये सारी चीजें मिला के आपकी पर्सनालिटी बनाती हैं। सो उसके ऊपर ज्यादा ना जाते हुए, लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स नाउ। So in the 21st century, online communication skills are greater than offline communication skills. Can somebody tell me why? क्यों कह रहे हैं हम
कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा महत्वपूर्ण है रादर देन ऑफलाइन कम्युनिकेशन स्किल्स? कोई गेस कर सकता है? कोई गेस नहीं कर सकता? अच्छा मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए मैम। जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि मैंने कहा 21st सेंचुरी में ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफलाइन कम्युनिकेशन स्किल्स से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या, पहली बात तो ये कि क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? मैम एग्री करते हैं ना, क्योंकि मैम ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्किल्स में एक ऐसी चीज़ है, हम घर बैठे भी कर सकते हैं अपन ऑफिस वर्क, जैसे मैं अभी लॉकडाउन में हुआ था। राइट। और मैम ऑफलाइन में तो यस मैम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैम ऑनलाइन मैम यही तो, हम जैसे मैम लंदन का वर्क मैं अपन घर पे भी कर सकते हैं बैठ के। और मैम सभी कनेक्टिविटी पे रहते हैं मैम ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्किल से, बट मैम ऑफलाइन में ऐसा नहीं हो पाता, इसीलिए मैम ऑनलाइन ज़्यादा सक्सेस है मैम ऑफलाइन से। ओके, वेरी गुड। आप, मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस पॉइंट तक पहुंच पाए और आपने लॉकडाउन के दौरान जो भी कुछ चेंजेस हमारे लाइफस्टाइल में आए उससे इस चीज को कनेक्ट किया। दैट इज वेरी वेरी नाइस एंड आई एम थैंक सो यू हैप्पी मैम। कि आप लोग उन लाइंस पे सोच रहे हैं जिन लाइंस पे हम चाहते हैं आप सोचें। वेरी गुड। अच्छा, ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्किल्स और ऑफलाइन कम्युनिकेशन स्किल्स के बीच में कुछ डिफरेंस है क्या? मैम बिल्कुल शिवानी, डिफरेंस है। जी बताइए। मैम ऑफलाइन में तो वर्क यस मैम मैम। ऑफलाइन में अपन में वर्क कर सकते हैं मैम, ऑफलाइन ही जा सकते हैं मैम, हैंड टू हैंड जैसे कि मैम। बट मैम और मैम जैसे अपनी कंपनी मैम दूर है, लाइक मैम नोएडा में कंपनी ग्वालियर बैठे हैं, तो मैम ऐसा नहीं हो पाता। बट कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना मैम ऑनलाइन, इससे मैम बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत अच्छी बात ये है मैम, घर बैठे काम कर सकते हैं अपन। दोनों में बस यही डिफरेंस है, क्योंकि मैं ऑफलाइन जो है ना, ऑफलाइन में अपन ऑफलाइन ही काम करेंगे मैम, बट मैम ऑनलाइन में अपन घर बैठे कर सकते हैं, फर्क यही है बस। ठीक। हेलो मैम। हाँ जी। मैम सिर्फ कॉन्फिडेंस का डिफरेंस है। कॉन्फिडेंस का डिफरेंस है? अच्छा, यस कैसे? मैम। थोड़ा सा इलैबोरेट करें इस पे। ऑनलाइन अपन किसी व्यक्ति से ज्यादा अपन मतलब अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, पर ऑफलाइन अपन ऐसा नहीं कर पाते। अच्छा ठीक है, मतलब ऑनलाइन जब आप होते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं रादर यस देन मैम। ऑफलाइन। ओके, वेरी यस गुड। मैम। यस मैम। ओके, गुड। और कुछ, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? यस मैम, आई थिंक ऑनलाइन में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर ऑफलाइन में तो फेस टू फेस गेस कर सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन बता देता है, पर ऑनलाइन में ये चीज़ थोड़े लैग कर जाती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और मैं चाहती हूँ कि पहले जो 2 पॉइंट्स हमें मिले, कॉन्फिडेंस वाला और दुनिया भर में कहीं भी बैठ के काम करने वाला, उसके अलावा आप इस पॉइंट के ऊपर भी बहुत गौर से सोचिए। ये जो क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ जिन्होंने ये बात बोली अभी? हम शिवानी। शिवानी, ओके, शिवानी इट्स यू, ओके। तो शिवानी ने जो कहा, इस बात के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि ऑनलाइन में जैसे लॉकडाउन में किया हमने, घर पे बैठ के काम किया, और सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात कोई भी मौसम हो हम घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि फेस टू फेस बात करने में थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, लेकिन ऑनलाइन बात करने में फ्री महसूस करते हैं, थोड़ा इजी महसूस करते हैं। ये एक हेलो बहुत मैम। मोटी मोटी स्कूल बात हो गई। हेलो मैम। हाँ जी। मैम ऐसा भी नहीं, मतलब हर जगह ऑनलाइन ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि अपना नेटवर्क भी इशू कर जाता है बहुत बार, अपन अर्जेंट वर्क कर रहे हैं तो हाँ, इसलिए कुछ जगह पर ऑफलाइन यस ज़रूरी मैम। है। बिल्कुल हो जाता है। यस मैम। तो मैं वो उसका डाउन साइड है, यस मैम। वो उसका डाउन साइड है, राइट? ऑनलाइन कम्युनिकेशन का, कि कभी अगर आपके पास गैजेट्स ना हो या इलेक्ट्रिसिटी ना हो, आपका मोबाइल या लैपटॉप चार्ज ना हो या आपके पास इंटरनेट ना हो, तो आप वो नहीं कर सकते। उस केस में ऑफलाइन कम्युनिकेशन ही जरूरी हो जाता है। ठीक ज़्यादा है, बेटर है। उस केस में यस। बेटर है। जो शिवानी ने जो कहा उसके ऊपर ही मैं थोड़ा सा और आगे इलैबोरेट करना चाहूंगी, क्योंकि हमारा जो नेटिकेट्स का वर्कशॉप है वो उसी तरफ पॉइंट करता है। तो क्या होता है कि अगर आप कॉलेज में हैं, मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, कुछ कुछ भी बात हो रही है, और आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, गॉड फॉरबिड आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है और आपको प्रिंसिपल ने बुला लिया या आपको कुछ पनिशमेंट मिल गया, किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा, राइट? लेकिन आपकी जो ऑफलाइन रेप्यूटेशन है, आप जो ऑफलाइन बात करते हैं किसी के साथ, वो कुछ समय के बाद लोग भूल जाते हैं। आपने अगर आज कुछ रूड कह दिया, कल आकर आपने सॉरी कहा, अपनी गलती का रेक्टिफिकेशन कर लिया,
और आपने बोला कि भाई मैं उस समय बहुत खराब से मूड में था, इसीलिए मैंने कह दिया, प्लीज उसको भूल जाओ, तो सामने वाला व्यक्ति आपको माफ भी कर देगा। अगर मान लीजिए आपको किसी किसी कारणवश कुछ पनिशमेंट मिल गई, क्लास से बाहर खड़ा कर दिया या जो कुछ भी, थोड़े दिन के बाद आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो वो जो पुरानी मेमोरीज हैं वो धूमिल हो जाती हैं और नई मेमोरीज फॉर्म हो जाती हैं। ये ऑफलाइन कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन ऑनलाइन कम्युनिकेशन में आप जो भी कुछ कहते हैं, जो भी कुछ लिखते हैं, जो भी कुछ पोस्ट करते हैं, वो हमेशा मौजूद रहता है। द इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। इंटरनेट की मेमोरी अथाह है, इंटरनेट कभी नहीं भूलता। इसीलिए हमें नेटिकेट्स और ऑनलाइन रेपुटेशन अच्छी बनाने की जरूरत है। आज आपने कुछ पोस्ट कर दिया गुस्से में आके, बहुत ही कुछ आपको गुस्सा आ गया, आपने कुछ तो भी पोस्ट कर दिया कहीं फेसबुक पे या ट्विटर पे या कहीं भी। उसके बाद आपने 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद भी कुछ बहुत अच्छी आपका जो स्टेटमेंट था आप भूल गए लिखकर, आपने कुछ लिखा था, लेकिन आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया जो कि आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करेगा। और आजकल बी वेरी केयरफुल, ये होता है जब आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, फॉरेन यूनिवर्सिटी में स्पेशली एनरोल करना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट, या आप कोई बहुत अच्छी एमएनसी में जॉब करने जाते हैं, नॉट जस्ट बहुत अच्छी एमएनसी बट इवन द जॉब्स इन योर ओन सिटी, वो भी आपका एक बैकग्राउंड चेक आपके ऑनलाइन प्रेजेंस से करते हैं। और अगर आपने कोई कंट्रोवर्शियल बात कही है तो आपके लिए वो हानिकारक साबित हो सकती है। इसीलिए ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा ट्रिकी होता है और दोनों के बीच में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ऑफलाइन कम्युनिकेशन में ऑफलाइन आपकी जो रेपुटेशन है वो आप कॉन्स्टेंटली चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन आपको राइट फ्रॉम डे वन अच्छी बनाकर ही रखनी हो, जिस तरीके से आप अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहते हैं वैसी। अच्छी रेपुटेशन बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी झूठ वूठ लिखते रहें अपनी प्रोफाइल में, क्योंकि वो भी पकड़ में आ जाता है। इसीलिए ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए ईमेल राइटिंग एक बहुत इफेक्टिव टूल है। हम सब जानते हैं, हमने शायद अपनी लाइफ में आज तक बहुत सारी ईमेल्स लिखी भी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि एक अच्छा ईमेल लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। वो पॉइंट्स में डिस्कस करती हूँ। There are 14 points which I have here. सबसे पहला इसमें है choose your email ID carefully. आपकी email ID फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स साथ में ले लेते हैं। You may have more than 2 email IDs, one for professional communication and one for personal communication. So जब आप अपनी प्रोफेशनल आईडी बना रहे हैं जिससे आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, प्रोफेशनल नेटवर्क में मेल्स भेजेंगे, अपने टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, अपने स्टूडेंट्स या कलीग्स के साथ में इंटरैक्ट करेंगे, जिसमें आप जॉब के लिए एप्लीकेशन देंगे जिस ईमेल से, वो ईमेल आईडी बहुत क्लियर होनी चाहिए, विच मीन्स आपका नाम होना चाहिए अगर हो सकता है तो। कभी कभी ऐसा होता है कि योर नेम इज टेकन, बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सेम नाम के हो सकते हैं, तो उस आप अपने नेम के साथ में भी अपना सरनेम पहले लगा के बीच में एक डॉट या अंडरस्कोर लगा के अपना नाम जहां तक हो सके कोशिश करें कि आपकी प्रोफेशनल ईमेल आईडी जो है वो आपका रियल नेम ही हो। वो कोई फ्रेज या कोई ऐसा ऐसा कोई वर्ड जो आपको अच्छा लगता है जिसको तकिया कलाम कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशली जो आपकी प्रोफेशनल आईडी है वो। आपकी जो पर्सनल आईडी है, पर्सनल ईमेल आईडी हम क्यों यूज करेंगे? अगर हमको सपोज कि मेक माई ट्रिप पे कोई अकाउंट बनाना है, या मुझे फेसबुक पे कोई अकाउंट बनाना है, या फिर मुझे किसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे कोई अकाउंट बनाना है, उसके लिए मैं अपनी पर्सनल आईडी यूज करूंगी जिससे कि मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन डिफरेंट रहे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आज के दिन आपके पास ऐसी ईमेल आईडी नहीं है जो कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग में आपका काम कर सके, तो आप प्लीज एक ऐसी ईमेल आईडी बना दें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ। मेरी प्रोफेशनल आईडी है jhageetanjali21@gmail.com। 21 इसलिए लगाया क्योंकि झा गीतांजलि as such अवेलेबल नहीं था, सो आई जस्ट यूज्ड अ नंबर दैट आई लाइक्ड। दैट इज परफेक्टली ओके, क्योंकि वो बहुत न्यूट्रल सी चीज है। नोबडी केयर्स कि आपने एक नंबर लिखा है वहां पर, बट ऐसा नहीं कि उसमें 10 डिजिट का नंबर आपने लगा दिया।
कुछ भी ऐसा जो यूनिक हो, पर आप जिसे मेल भेज रहे हैं उसको ये समझा दे कि आप कौन हैं, ऐसी ईमेल आईडी होनी चाहिए, प्रोफेशनल। और मेरी पर्सनल ईमेल आईडी इससे बिल्कुल डिफरेंट है, उसका नाम है flower.heels@gmail.com। तो अगर मैं flower.heels से अपने एम्प्लॉयर को या अपने कलीग को मेल भेजूंगी तो वो नहीं समझ पाएंगे कि ये किसकी मेल आईडी है, राइट? इसीलिए प्रोफेशनल और पर्सनल दो डिफरेंट होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज राइट अ क्लियर एंड क्रिस्प सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन आप सब ने देखा होगा, मेल में, ईमेल में एक सब्जेक्ट लाइन होती है। सब जानते हैं ना, या मुझे खोल के दिखाना चाहिए? मालूम है मैम, मालूम है। ग्रेट ग्रेट, आई एम सो हैप्पी कि आपको ये पता है। तो जहां पे रिसिपिएंट का नेम लिखते हैं उसके नीचे एक सब्जेक्ट वाली लाइन होती है। तो आप अपने मेल में क्या लिखने वाले हैं, कंटेंट क्या होने वाला है, उसको समराइज करके एक छोटे से सेंटेंस में बनाकर सब्जेक्ट लाइन जरूर लिखें। और अच्छी क्लियर सब्जेक्ट लाइन का ये मतलब नहीं है कि आप ऐसा लिख दें कि वेरी अर्जेंट, रीड इमीडिएटली। नहीं, दैट इज लाइक एन ऑर्डर, दैट इज नॉट अ गुड सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन इसीलिए होती है ताकि आपके ईमेल का कंटेंट रीडर को पहले से पता चल जाए और वो उसी माइंडसेट के साथ उस ईमेल को पढ़े। फोर्थ वन इज यूज अ पोलाइट लैंग्वेज। कभी भी इस तरीके की लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए जैसे कि you told me that day to do this. No, try not to use personal pronouns. आप ऐसा कह दें as discussed on so and so date और as discussed between us, something like that. जब आप you करके बात करते हैं इंग्लिश में, एक तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि you का मतलब आप भी होता है, you का मतलब तुम भी होता है। तो अगर आप कुछ सेंसिटिव मैटर के ऊपर लिख रहे हैं तो you से सामने वाला नहीं समझ पाएगा कि आप पोलाइटली लिख रहे हैं या रूडली लिख रहे हैं। इसीलिए इट्स बेटर टू यूज अ थर्ड पर्सन लैंग्वेज एंड एन ऑब्जेक्टिव टोन ऑफ वॉइस एज डिस्कस्ड द अदर डे। और आप जैसे अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से रियल लाइफ में बात करते हैं पोलाइटली, सौम्यता के साथ, उसी तरीके से अपनी ईमेल में लैंग्वेज यूज करें। गुड आफ्टरनून मैम। यस, गुड आफ्टरनून। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये ईमेल के बारे में पूछ रहा था। जी पूछिए। मतलब ईमेल से अपन डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं? क्या मैसेज? ऐसे कुछ भेजना है अपन को तो वो ईमेल में ही आके भेजेगा क्या? किस तरीके के मैसेज की बात कर रहे हैं? ऐसे अपन कोई फोटो वगैरह फॉरवर्ड करते ही भेजते हैं। हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं, उसमें अटैचमेंट होता है ईमेल के अंदर, उसमें फोटोज भेज सकते हैं आप। हाँ हाँ ठीक। मैम मेरा रिक्वेस्ट था कि वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस एट द एंड। इस I would दौरान also- आप इस दौरान आपको कोई भी सवाल आता है तो माय डियर स्टूडेंट्स यू कैन ड्रॉप दो सेंटेंसेस इन द चैट बॉक्स। यूट्यूब पे भी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो यूट्यूब के चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। कैरी ऑन मैडम। Yeah, thank you so much, sir. Fifth point is be courteous and greet the receiver before starting the mail and use a courteous sign off phrase. Yes. कैरी ऑन मैम, कैरी ऑन। Yeah. हेलो मैम। सुनील जी, आपको बताया गया है प्रोग्राम के एंड में आप सवाल पूछेंगे, अभी आप सुनिए जो मैडम बोल रही है। यस मैम, कैरी ऑन। So be courteous. Being courteous का मतलब वही respectful, सम्मान से बात करना। Greet the receiver before starting the mail and use a courteous sign off phrase, which means जैसे कि हम नॉर्मली किसी से मिलते हैं तो हम नमस्ते कहते हैं, हेलो कहते हैं, गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग्स देते हैं। उसी तरीके से जब हम मेल लिख रहे हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सामने वाले को एड्रेस करके, जैसे कोई मुझे मेल लिखे तो रिस्पेक्टेड डॉक्टर झा या डियर गीतांजलि मैम, जिस भी तरीके का हमारा रिलेशनशिप है उस तरीके से एड्रेस मुझे करके वो ग्रीटिंग्स ऑफ द डे या गुड मॉर्निंग या हेलो ऐसा कुछ लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से जो मैं यूजुअली यूज करती हूँ दैट इज ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, बिकॉज मुझे नहीं पता कि मेरा मेल सामने वाला दिन के किस समय पे पढ़ेगा, राइट? तो अगर मैंने गुड मॉर्निंग कहा और वो नाइट में पढ़ रहा है, ऑल्दो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर हम ग्रीटिंग्स ऑफ द डे लिखते हैं तो वो एक बहुत ही न्यूट्रल सा ग्रीटिंग है और ग्रीटिंग है ही, तो हम इस तरीके से उसको एड्रेस कर सकते हैं। एंड लास्ट इज
courteous sign of phrase, जैसे कि हम दोस्तों से मिलने के बाद या रिलेटिव्स के घर से आने के टाइम पे या तो चरण स्पर्श करते हैं या बाय बोलते हैं या नमस्ते प्रणाम कहते हैं, उसी तरीके से जब हम अपना मेल एंड कर रहे हों तब हम उसके अंदर एक साइन ऑफ फ्रेज डालें, विच मीन्स हम थैंक यू या हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर योर टाइम, ऐसा कोई सेंटेंस उसके अंदर डालें। बिकॉज ये बात तो आप अग्री करेंगे कि आपका मेल पढ़ने में सामने वाले इंसान ने अपने दिन के कुछ पल, कुछ क्षण लगाए हैं जो कि एक्सक्लूसिवली आपकी बात सुनने के लिए थे। So it is always good to thank them for their time and say something like this कि waiting to hear from you and then regards and your sign. आप सबको याद होगा जब हम स्कूल में थे तो हमको लेटर राइटिंग सिखाई गई थी, याद है सबको? आई होप कि याद हो। लेटर Yes, किस तरीके से लिखते हैं, ऊपर एड्रेस डालना, ये सब चीजें। तो ईमेल में एड्रेस वगैरह डालने का तो कोई सिस्टम है नहीं, क्योंकि एड्रेस आपका ईमेल एड्रेस ही है, वो जा रहा है। और डेट भी हमें नहीं डालनी होती है, क्योंकि डेट नॉर्मली ईमेल के साथ में डेट एंड टाइम स्टैम्प जाता ही है। तो बाकी जो सारे रूल्स हैं ग्रीटिंग के, रिस्पेक्ट से सैल्यूटेशन के, पूरा लेटर लिखने के और उसके बाद साइन ऑफ करने के, वो सारे रूल्स हमको ईमेल राइटिंग में भी फॉलो करने चाहिए। इट इज वेरी वेरी गुड एंड इट इज ऑल्सो मैंडेटरी, क्योंकि हम इस समय पे प्रोफेशनल ईमेलिंग की बात ज्यादा कर रहे हैं रादर देन पर्सनल मेल्स। बिकॉज लेट्स फेस इट, पर्सनली हमें अगर अपने फ्रेंड से कुछ कहना होता है तो हम तुरंत फोन उठा के या व्हाट्सएप करके उनको लिख देते हैं, लेकिन प्रोफेशनली हमको ये चीजों का ध्यान बहुत रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, राइट द बॉडी ऑफ द मेल इन बुलेट पॉइंट्स। मतलब लंबे लंबे पैराग्राफ्स ना लिखकर हम पॉइंट वाइज लिखें। आप देख रहे हैं कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ये पॉइंट्स के साथ लिखी है, इसी तरीके से आप ईमेल में अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको पॉइंट्स में लिखना या बुलेट पॉइंट्स बनाना कंफर्टेबल ना लगे, तो आप इसके बाद वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर गौर करें। गिव 1 लाइन स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स। आप एक बात लिख दीजिए, एक सेंटेंस, और फिर 1 लाइन का स्पेस देकर दूसरा सेंटेंस लिखिए, ताकि आपका जो मेल है वो एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ना लगे, वो क्लियर हो और रीड करने वाले को ऐसा ना लगे कि अरे बाप रे इतना सारा पढ़ना है मुझे। वो आराम से उसे पढ़े, बिना घबराए, बिना डरे, और आपकी सारी बात क्लियर उसके सामने रखी जाए। जब हम पैराग्राफ्स में लिखते हैं और स्पेस नहीं देते तो हमारे ईमेल का जो कंटेंट है वो बहुत कंफ्यूज्ड दिखाई देता है। इसीलिए इट इज ऑलवेज गुड टू यूज बुलेट पॉइंट्स और गिव 1 लाइन स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स। नेक्स्ट इज कीप द मेल शॉर्ट, इट शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। अब इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि 200 वर्ड्स इज द मैक्सिमम लिमिट, लाइक द एक्सट्रीम मैक्सिमम लिमिट। 200 वर्ड से ज्यादा किसी हाल में नहीं होना चाहिए एक मेल, क्योंकि इतना समय किसी भी प्रोफेशनल के पास नहीं होता कि वो आपके लंबे लंबे चिट्ठी पढ़े बैठकर। एक आइडियल ईमेल जो होता है वो 50 to 125 वर्ड्स का होना चाहिए। दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। 50 से 125 शब्द का मेल होना चाहिए और 200 शब्दों से ज्यादा किसी भी हालत में आपका मेल नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा कम्युनिकेशन आपको करना है किसी के साथ, तो इट इज बेटर कि आप एक समराइज्ड फॉर्म में अपने पॉइंट्स मेल में लिख के भेज दें और उनको रिक्वेस्ट करें कि कैन वी प्लीज मीट टू डिस्कस। हो सकता है कई बार कि आपके पास जो बात करने के लिए हो वो 200 शब्दों को एक्सीड कर जाए, तो आपको कहने के लिए बहुत कुछ है। आप उसको सिर्फ एजेंडा बता दें अपना कि मुझे इस बारे में आपसे बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं आपके टाइम की कन्वीनियंस के अनुसार, और फिर आप वेट करें उनके मेल का, बार बार मेल्स उनको ना कहें। तो लंबा डिस्कशन अगर है तो टेक एन अपॉइंटमेंट एंड टॉक टू द पर्सन फेस टू फेस। नेक्स्ट, यूज शॉर्ट सेंटेंसेस फॉर अ क्लियर मैसेज। ये गलती कई लोग करते हैं। ये एक बहुत नॉर्मल सा राइटिंग का, इफेक्टिव राइटिंग का रूल है कि अगर आपके सेंटेंसेस शॉर्ट होते हैं तो आपका मैसेज बहुत क्लियरली जाता है। बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस और उसके अंदर कोई डायलॉग भी लिख रहे हैं आप, उससे आपका मैसेज क्लियरली नहीं जाता। तो आप अपने मन में सोचिए
कि कैसे आप उस सेंटेंस को शॉर्ट करके, या बहुत लंबा कोई मैसेज अगर आपको देना है तो उसके 2 या 3 शॉर्ट क्लियर सेंटेंसेस बनाकर आप मेल के अंदर लिखें। क्योंकि सामने वाला आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहा है, वो सिर्फ आपके शब्द पढ़ रहा है। इसीलिए आपके सेंटेंसेस शॉर्ट एंड क्लियर होने चाहिए मेल के अंदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 10, अवॉइड राइटिंग अ प्रोफेशनल ईमेल व्हेन यू आर एंग्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरी नजर से इस पूरे इफेक्टिव ईमेल राइटिंग का। कई बार ऐसा होता है कि बॉस ने कुछ कह दिया, लीव सैंक्शन नहीं करी, या आपने कुछ प्रपोजल दिया था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, या आपने कोई प्रोजेक्ट अपने टीचर को सबमिट किया था, उन्होंने बोला कि ये ठीक नहीं है, और आपको गुस्सा आ जाता है कि मैंने इस चीज पर इतनी मेहनत करी है और मैं इसका जवाब दूंगा या इसका जवाब दूंगी। उस गुस्से वाले स्टेट में आप कभी भी ईमेल ना लिखें। ना सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि आई वुड से पर्सनल मेल भी आप कभी भी गुस्से में ना लिखें, क्योंकि आपने अब तक जितने भी पॉइंट्स पढ़े, कर्टियस होना, ग्रीट करना, पोलाइट लैंग्वेज यूज करना, ये सारा कुछ आप नहीं कर पाएंगे व्हेन यू आर एंग्री। और जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था, जब भी आप इंटरनेट के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं, वो इंफॉर्मेशन फॉरएवर वहीं रहती है। आपका मेल डिलीट नहीं हो सकता है, आपका मेल हमेशा हमेशा के लिए रहेगा और आपकी इमेज खराब हो जाएगी। गुस्सा आना एक बहुत नेचुरल चीज है, गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से में भी खुद को साधना विवेकशीलता की निशानी होती है। तो जब आप गुस्से में हो, आप लंबी गहरी सांस लें, पानी पिएं, सोचें कि आपको गुस्सा क्यों आया, और उसका रिस्पॉन्स पोलाइटली, कर्टियसली, अच्छे तरीके से लिखकर, अच्छे शब्दों में लिखकर तभी पोस्ट करें। एकदम एक्सट्रीम गुस्से के स्टेट में आप अपने मेल को कभी ना लिखें। नेक्स्ट पॉइंट, प्रूफ रीड द ईमेल एंड टेस्ट द टोन ऑफ द मेल। तो प्रूफ रीड करना मतलब एक बार आपने लिख लिया तो आप उसको दोबारा पढ़ें, आप देखें उसमें किसी एडिटिंग की जरूरत है क्या, कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, आपका ईमेल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे पास इंटरनेट पे, हम लैपटॉप पे लिखते हैं या मोबाइल में लिखते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जो कि हमें बता देते हैं। एक रेड कलर की लाइन आ जाती है ना नीचे, जो बताती है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, या ग्रीन लाइन आती है जब कोई ग्रामेटिकल एरर होता है, स्पेसिंग का एरर होता है तो ब्लू लाइन आती है नीचे। आई थिंक आप लोगों को ये सब पता होगा। तो उससे हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, और आप उसके ऊपर उस वर्ड पे या उस सेंटेंस पे राइट क्लिक करते हैं तो आपको सजेशंस भी मिल जाते हैं कि दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग और दिस इज द करेक्ट वे टू राइट दिस सेंटेंस। तो दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ प्रूफ रीडिंग। आप एक बार देख ली कि आपने जो मेल लिखा है उसमें टेक्निकली लैंग्वेज के, स्पेलिंग्स के कोई एरर्स तो नहीं है, आपका मैसेज ठीक जा रहा है या नहीं। और दूसरा पार्ट जो है इस सेंटेंस का, टेस्ट द टोन ऑफ द मेल। ये कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि मेल कैसा साउंड कर रहा है? तो उसके लिए एक बहुत अम्यूजिंग सा, बहुत इंटरेस्टिंग सा एक ट्रिक है जो मैं नॉर्मली यूज करती हूँ। वो ये कि मेल लिखने के बाद मैं उसको जोर से पढ़ती हूँ, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी टोन ऑफ वॉइस में। आई रीड इट अलाउड। उससे मुझे ये पता चलता है कि जो भी शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं, जिस एसेंस से, जिस भाव से, जिस इमोशन से मैं कन्वे करना चाहती हूँ, क्या ये सारे शब्द उसमें फिट हो रहे हैं या नहीं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टोन ऑफ वॉइस के साथ या मेरे मैसेज के साथ कोई शब्द ठीक नहीं जा रहा है, तो मैं उस वर्ड को चेंज कर देती हूँ। सो दिस इज समथिंग विच इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो फॉर मी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप जोर से पढ़ते हैं मेल तो आपको पता चलता है कि आप जो सोच रहे थे आपने बहुत अच्छा लिखा है, कहीं उसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है। सो यू कैन ट्राई दिस। या आप सिर्फ अपने मन में इमेजिन भी कर सकते हैं कि आप अगर ये मेल जो लिखा है वो बोल के सुनाएंगे तो कैसा साउंड करेगा, राइट? उस तरीके से चेक करिए। सेकेंड पार्ट में मैंने लिखा है, आस्क समवन टू हेल्प यू विद प्रूफ रीडिंग फॉर एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप श्योर नहीं हैं कि आपने अच्छा टेक्स्ट लिखा है या आपका मैसेज बहुत क्लियर जा रहा है, तो आप किसी और से, अपने किसी फ्रेंड से या टीचर से, किसी से उसको एक बार प्रूफ रीड करवा लें और उनसे पूछें कि क्या मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो क्लियरली जा रहा है, क्या इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। बिकॉज नॉर्मली ये होता है, हम जब कुछ लिखते हैं, कुछ बनाते हैं,
आप जब अपने क्वेश्चन पेपर भी अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम्स में, तभी भी ऐसा होता है कि एकदम से मिस्टेक्स दिखाई नहीं देती हैं और अपनी खुद की गलतियां पकड़ में आना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कोई और अगर ऑब्जेक्टिवली आपका कंटेंट पढ़ लेगा तो वो आपको बता सकता है कि हाँ एग्जैक्टली जैसा तुम कहना चाह रहे हो ये वैसा ही है, या फिर इसमें आप ये चेंजेस कर सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग टू आस्क फॉर हेल्प विद प्रूफ रीडिंग। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके पास लैंग्वेज की पकड़ नहीं है या आप अच्छा नहीं लिख सकते। सिर्फ उसके अंदर से मिस्टेक्स को एलिमिनेट करने के लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। इट्स ऑलवेज गुड। पॉइंट नंबर 12, beware of autocorrect while writing mails on phone and always use spell check। अब स्पेल चेक की हम बात पहले कर चुके हैं, लेकिन ऑटो करेक्ट हम सब जानते हैं कि कई बार बहुत ज्यादा मेस क्रिएट कर देता है। जैसे मैं अगर अपना नाम लिखती हूँ GEETANJLI गीतांजलि, तो वो उसको ग्रेटा कर देता है, क्योंकि जो पूरे जो क्या कहना चाहिए, जो टाइपराइटर्स हैं, जो टाइपिंग टूल्स होते हैं, जो लैंग्वेज सेटिंग टूल्स होते हैं, वो यूएस या यूके इंग्लिश पे सेट रहते हैं एंड दे डोंट हैव अ वर्ड गीतांजलि इन देयर डिक्शनरी। So sometimes when you are writing a word, spell check makes an error and autocorrect makes an error and makes it some other word, जिसका कि पूरा सेंस ही खत्म हो जाता है। एक जोक मैंने पढ़ा था कहीं, इसके ऊपर मुझे याद आया। किसी ने एक जॉब एप्लीकेशन भेजा और उसमें उन्होंने डियर मैडम करके पूरा अपना मेल लिखा, लेकिन उनका वो जो एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट हो गया। बाद में जब उन्होंने वापस से अपना मेल पढ़ा तो पता चला कि उसमें डियर मैडम की बजाय डियर मैडमैन हो गया था। हो सकता है कि उनका जो ऑटो करेक्ट है उसने मैडम को मैडमैन कर दिया हो किसी वजह से, एंड इट बिकेम वेरी ऑफेंसिव। तो इतने बड़े बड़े एरर्स भी ऑटो करेक्ट कर देता है कभी कभी। इसीलिए अगर आप मेल टाइप कर रहे हैं तो इट इज बेस्ट दैट यू टाइप इट ऑन योर लैपटॉप फर्स्ट ऑफ ऑल। बट अगर लैपटॉप नहीं है और आप फोन पे करते हैं तो प्लीज ऑटो करेक्ट से बहुत बहुत सावधान रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है ऑटो करेक्ट को चेक ना करना। आप जो कह रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं, ऑटो करेक्ट उसको कभी कभी गड़बड़ कर सकता है। वैसे तो ऑटो करेक्ट काम देता है ना, सही देता है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ भी कर देता है। जैसा मैंने अभी बताया, मैडम तो इंग्लिश वर्ड ही है लेकिन उसने उसको चेंज कर दिया, राइट? और ऐसा हो जाता है कभी, तो जस्ट बी केयरफुल। आप एक बार जब दोबारा पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, इसीलिए भी प्रूफ रीडिंग जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, 13 पॉइंट, अवॉइड द रिसीवर्स एड द रिसीवर्स एड्रेस आफ्टर यू हैव प्रूफ रेड द मेल। जब मैंने मेल लिखा तो मुझे जिसको सपोज कि मुझे डॉक्टर विनोद को मेल लिखना है, मैंने पूरा मेल लिखा, उसके बाद मैं उनका ईमेल आईडी ऐड करूं, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा होता है, आपने लिखा और एंटर कर दिया या सेंड कर दिया, अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई तो, अगर उसमें कुछ ऐसा लिखा हो जो कि क्लियर ना हो, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, या ऑटो करेक्ट ने कुछ गड़बड़ कर दिया हो, तो रिसीवर को डायरेक्टली मेल मिल जाएगा। और मेल वापस करने का, जैसे व्हाट्सएप वगैरह में एडिट करके डिलीट करने का ऑप्शन होता है, मेल में अभी तक वो ऑप्शन नहीं है। इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर, एंड दिस इज नॉट अ गोल्डन रूल विच इज यूनिवर्सली फॉलोड, लेकिन ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इस तरीके की मिस्टेक्स भी कभी कभी हो जाती हैं। सो इट इज ऑलवेज गुड कि आप रिसीवर का एड्रेस पहले ना लिखें, आप रिसीवर का एड्रेस अपना पूरा मेल लिखने के बाद, प्रूफ रीड करने के बाद, मिस्टेक्स को करेक्ट करने के बाद, उसकी टोन ऑफ वॉइस वगैरह सब चेक करने के बाद ही रिसीवर का एड्रेस ऐड करें। एंड इट इज वेरी सेफ, बिकॉज अगर आप सेंड हिट भी करते हैं, आप मेल सेंड करने की कोशिश भी करते हैं, तो जब तक रिसीवर का एड्रेस नहीं होगा मेल जाएगा ही नहीं। और गूगल और एज इट इज आपसे, या कोई भी मेल प्रोवाइडर आपसे पूछ ही लेगा, यू हैव नॉट एडेड द रिसिपिएंट्स नेम, या एटलीस्ट ऐड वन रिसिपिएंट। क्या हम सवाल बात के लिए रख सकते हैं प्लीज? नहीं, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, आपका सवाल बिल्कुल लिया जाएगा, प्लीज टाइप कर दीजिए। और लास्ट पॉइंट, avoid using too many exclamation marks and emojis are an absolute no in professional mails। exclamation mark जानते हैं ना, एक लंबी सी लाइन उसके नीचे डॉट होती है जो कि exclamation आहा वाले एक्सप्रेशन के लिए यूज होती है। प्रोफेशनल मेल्स में अवॉइड करना चाहिए exclamation mark। ग्रीटिंग्स के बाद आप लगा सकते हैं,
बिकॉज ग्रीटिंग आप किसी को हैप्पी होके देते हैं, बट उसके अलावा it is better to avoid exclamation marks, and you should not send emoticons or emojis, those smiley faces in professional mails. अगर आप जॉब के लिए लिख रहे हैं या अपने बॉस को या अपने टीचर या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्लीज उसमें स्माइलीज मत बनाइए, वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल लुक नहीं देता है. इट इज फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन. ओके, तो अब इसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इस पेज का, ये जो इफेक्टिव टूल्स फॉर कम्युनिकेशन है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आपने लिखा हो कहीं ये टिप्स तो इट इज वेल एंड गुड. आप, क्योंकि आप बैक एंड फोर्थ नहीं जा पाएंगे इस मेल से, इस पेज से, और जो एक्टिविटी है वो इसी पे बेस्ड है. तो आई एम गिविंग यू 2 minutes, इफ यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, then we'll proceed to the activity. Okay, I think screenshot तो हो ही गया होगा इतनी देर में. चलिए, अब एक्टिविटी ये है कि ये मेरे पास 2 मेल सैंपल्स हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इनमें देखकर मुझे बताएं आपको क्या मिस्टेक्स दिखाई दे रही हैं. दूसरे की गलती निकालने में बड़ा मजा आता है ना. चलिए आज दूसरे की गलती निकालते हैं अपन. क्या मिस्टेक्स हैं इस मेल में, बताएं मुझे. अभी अगर कोई चाहे तो माइक ऑन करके बता सकता है. मैम यू इसमें शायद यूज हुआ है, तो आपने जैसे बताया था कि यू एक गलत भी हो सकता है, बिकॉज तुम भी हो सकता है, उसका मतलब ये आप भी हो सकता है. हाँ बिल्कुल ठीक है. आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट द प्रोजेक्ट यू असाइन टुडे, तो उसको वो लिख सकता था कि आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट द प्रोजेक्ट दैट वाज असाइंड टुडे. वेरी गुड. यस मैम. यस, गुड. एनीबॉडी एल्स? मैम हम इसको सब्जेक्ट पॉइंट्स में लाइन लिख नहीं, सकते थे. सब्जेक्ट लाइन नहीं है, करेक्ट. सब्जेक्ट लाइन नहीं है और एड्रेस भी नहीं है. यस मैम, बेसिकली एड्रेस भी सब्जेक्ट लाइन नहीं है, एड्रेस नहीं है. वेरी गुड. और भी कोई बैकग्राउंड में कुछ कह रहा था? मैम लास्ट में जो मैम होता है ना मैम, थैंक यू या मैं ओबीडियंटली, ये भी तो कुछ नहीं है इसमें. एक तो वो भी नहीं लिखा, और शायद पहले भी ग्रीटिंग नहीं लिखा उन्होंने. और मैम ग्रेट लाइक दिस यस तो मैम मैम. है ही नहीं है. जैसे मैम किसी के लिए लिखा जा रहा है मैम, सर या मैम के लिए है वह क्वेश्चन मैम डायरेक्टली लिखा हुआ. ठीक है. यस मैम. फर्स्ट प्रॉब्लम तो यही है. फर्स्ट प्रॉब्लम तो मैम इसकी यही क्रिएट है मैम, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट द प्रोजेक्ट यू असाइन. मैम इसमें मैम या सर के लिए लिख रहे हैं, उसमें वो तो कुछ है ही नहीं है मैम स्टूडेंट के लिए. डायरेक्टली कर दिया उन्होंने. डायरेक्टली कन्वर्सेशन है मैम. जी, इसमें सब्जेक्ट भी मिसिंग है. हाँ जी. अच्छा, इस मैसेज को पढ़ के आपको क्या लगता है इसकी सब्जेक्ट लाइन क्या हो सकती थी? कोई बता सकता है? कोई गेस कर सकता है क्या होना चाहिए था सब्जेक्ट लाइन? Ma'am, may I? यस. Ma'am, it will be like a query about chemistry project. Absolutely correct. Absolutely correct. That is the most clear subject line that could have been. Okay. Any other mistakes? चलो, ये मेल तो छोटा सा था, इसके अंदर उन्होंने कुछ एरर्स थे, कुछ चीजें थी जो मिसिंग थी, और हो सकता है कि ये उसको पॉइंट वाइज लिख सकता हो या नेक्स्ट लाइन में भी सेंटेंस लिख सकता हो, बट इट वाज नॉट नेसेसरी. ओवरऑल आप लोगों ने सही पॉइंट आउट किया कि ग्रीटिंग्स नहीं है और लास्ट में साइन ऑफ फ्रेज नहीं है, सब्जेक्ट लाइन नहीं है और रिसिपिएंट भी नहीं है, और डायरेक्टली क्वेश्चनिंग है द प्रोजेक्ट यू असाइंड, उसको हम थर्ड पर्सन में भी दैट वाज असाइंड करके लिख सकते थे. इज एनीबडी एल्स फाइंडिंग एनी अदर प्रॉब्लम विद दिस मेल? ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड वन देन. इसको देखें, पढ़ लीजिए पूरा मेल. क्या इसमें कोई मिस्टेक्स हैं या ये परफेक्ट है? Ma'am, there is no getting you started. Sorry? There is no starting getting. There's no starting Line. meeting, correct? Okay. क्या सब्जेक्ट लाइन परफेक्ट है इसकी या कुछ डिफरेंट हो सकती थी?
एक चीज मैं इसमें पॉइंट आउट करती हूँ, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को ईमेल लिखते हैं जिससे आप रोज कन्वर्स नहीं करते हैं, जिससे आप रोज बातचीत नहीं करते हैं, तो आप खुद को इंट्रोड्यूस करिए उस मेल में। जैसे ये मेल क्लियरली बता रहा है कि इन्होंने, एक टीचर ने एक पेरेंट को मेल लिखा है, तो उस टीचर ने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। अगर वो टीचर ये बता दे, ये क्लियर है कि किसी टीचर का पेरेंट को मेल है, लेकिन कौन टीचर है, हो सकता है कि पेरेंट जो इस मेल को रिसीव करे वो ये ना समझ पाए उसके नाम से या उसके ईमेल आईडी से कि वो कौन है। तो इट इज ऑलवेज गुड कि मैं अगर किसी पेरेंट को उसके बच्चे के बारे में मेल लिखूं तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूं कि डियर पेरेंट या डियर मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो, आई एम डॉक्टर गीतांजलि झा, आई एम योर, आई एम, जैसे होल्डन नाम लिखा है, आई एम होल्डन साइकोलॉजी टीचर या आई एम होल्डन क्लास टीचर, ऐसा कुछ करके उसको इंट्रोड्यूस करके अपना नाम बताकर, अपनी पोजीशन बताकर कि मैं किस कंसर्न में, किस रिलेशनशिप में आपसे इस बारे में बात कर रही हूँ, कर देना चाहिए। आप अपने टीचर्स को अगर मेल लिखते हैं तो वो आपको जानते हैं, तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। पर जिन लोगों के साथ हम कभी कभी बात करते हैं उनके लिए हमें इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए। ये एक चीज इसमें मिसिंग थी। और कुछ मिसिंग है? मैम ईमेल एड्रेस नहीं है प्रॉपर, टू ओनली पेरेंट लिखा हुआ है, तो पूरा ईमेल आईडी आएगा। वो तो जाएगा ही नहीं मेल। हाँ, ईमेल आईडी उसमें आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। और कुछ? एक चीज और पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, ये जैसे जो मेल लिखा है, मैसेज लिखा है, वो अपने क्वांटिटी में, नंबर ऑफ वर्ड्स में परफेक्ट है, पर ये टीचर टाइम लेकर पेरेंट के साथ बात कर सकती थी इस सब्जेक्ट के ऊपर, रादर देन ओनली राइटिंग अ मेल, राइट? तो she could have asked for a time with the parents कि क्या आप इस दिन आकर मुझसे मिल सकते हैं, या फिर अच्छा लिखा हुआ है उन्होंने, मैंने शायद मिस कर दिया, इज देयर अ गुड टाइम फॉर अस टू टॉक बाय फोन और इन पर्सन? ओके, सो दैट इज अ गुड आइडिया टू डू इट, और वो एक टाइम मेंशन भी कर देते अगर, तो इट वुड हैव बीन इवन बेटर। अदरवाइज दिस मेल इज ओके। सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई हैव, ऑनलाइन मीटिंग एटिकेट्स। जो हम आज मीटिंग कर रहे हैं, इस मीटिंग के भी कुछ एटिकेट्स होते हैं, इस बारे में बात करते हैं। और ये आज तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आज के सिनेरियो में जो कोविड का लॉकडाउन हुआ, कितने सारे ऑनलाइन क्लासेस हुए, उन सब में तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ड्यूरिंग अ मीटिंग। सबसे पहले ज्वाइन अर्ली। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मीटिंग के 1 घंटे पहले ज्वाइन कर लें। इट मीन्स कि मीटिंग स्टार्ट होने के विद इन 5 मिनट्स यू शुड ज्वाइन। बीच में ज्वाइन करना रूड माना जाता है, बिकॉज as we have already established, online communication is more important than offline communication now। और जिस तरीके से हम स्कूल या कॉलेज या वर्क प्लेस पे एक प्रॉपर टाइम पे पंक्चुअली पहुंचते हैं, हमें ऑनलाइन मीटिंग्स में, हमारे क्लासेस में भी पंक्चुअली पहुंचना चाहिए। हमेशा एक 5-10 मिनट्स का लैग टाइम दिया ही जाता है ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट डाउन होता है, कभी कुछ गैजेट काम नहीं करता, तो एक थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कि विद इन दिस टाइम यू कैन ज्वाइन। सो इट्स ऑलवेज गुड टू ज्वाइन एट अ शार्प टाइम, बट डोंट बी मोर देन 5 मिनट्स लेट फॉर एनी मीटिंग। देन नेक्स्ट इज ड्रेस अप्रोप्रिएटली। इस दौरान कई बार ऐसा हुआ कि स्टूडेंट्स अपने घर के कपड़ों में बिना बाल कोम किए, बिना फेस वॉश किए ऐसे ही बैठे हुए हैं रजाई में और क्लासेस ले रहे हैं, which looks very bad। अगर आप स्कूल जाते या आप कॉलेज जाते या आप अपने ऑफिस जा रहे होते तो आप इस तरीके से काम नहीं करते, राइट? वर्क इज वर्शिप। सो इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम और ऑफलाइन इन योर स्कूल और ऑफिस और कॉलेज, इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि आप अच्छे कपड़े पहने। इसका ये नहीं मतलब कि आप सज धज के बैठे, लेकिन कम से कम प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, ताकि कभी भी अगर आपका कैमरा ऑन होता है, आपसे कोई बात करनी होती है, आपको स्क्रीन पे आना पड़े, तो आप प्रेजेंटेबल हो, आप एक अच्छे स्मार्ट गेटअप में बैठे हो। सो ड्रेस अप्रोप्रिएटली wherever it is necessary। It is always good that if you have a uniform of your school or college, you wear that, and for professionals also it is good to dress appropriately for the meetings। Next, be aware of your surroundings। क्या लाइट अप्रोप्रिएट है? जहां मैं बैठा हूँ वहां बहुत ज्यादा नॉइज, बहुत ज्यादा एयर फ्लो, टू मच एयर फ्लो,
ये सब तो नहीं है, मेरे पेट्स या फैमिली मेंबर्स तो आसपास नहीं घूम रहे हैं, इससे बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. So look at your surroundings, they should be clean, they should not be distracting, and it is always good कि आप जिस तरीके से बैठे हैं, आपके कैमरे में आपका फेस और पीछे का वॉल दिखता है, बैकग्राउंड दिखता है, तो आपका बैकग्राउंड क्लियर हो, क्लीन हो. यूजुअली प्लेन वॉल के साथ बैठना चाहिए, प्लेन वॉल के अगेंस्ट, या अगर कोई अच्छी सी पिक्चर टंगी हो तो भी ठीक है, बस कुछ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होना चाहिए कि कोई अगर आपको देखे और पीछे की वॉल देखे तो अजीब या अनकंफर्टेबल महसूस हो. इट्स गुड कि अगर एक कोई कर्टन हो या प्लेन वॉल हो, इट्स ऑलवेज नाइस. इसके बाद इसी आइकॉन के नीचे देखिए मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि ये रिलेटेड है. तो आसपास की साउंड्स, आसपास के डिस्ट्रैक्शंस, लाइट का फ्लक्चुएशन, इंटरनेट का फ्लक्चुएशन, कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके उतना आप मिनिमाइज कर सकें, और किसी ऐसी जगह में बैठें जहाँ पे कि बैकग्राउंड नॉइसेस तो होती हैं, हम उनको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, और हम ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम अगर ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं तो घर वाले लोग या आसपास वाले लोग एकदम शांत बैठ जाएं, बिल्कुल कोई परेशानी ना हो. पर हम कोशिश ये कर सकते हैं कि कम से कम डिस्टर्बेंस हो और हम जो कह रहे हैं वो ज़्यादा सुनाई दे बजाय कि हमारी बैकग्राउंड नॉइसेस के. तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो बैकग्राउंड नॉइसेस का ही होता है. सो ट्राई टू मिनिमाइज दैट. स्टे सीटेड एंड स्टे प्रेजेंट, इसके लेफ्ट साइड में देखें जो आइकॉन है, स्टे सीटेड एंड स्टे प्रेजेंट. कई बार लोग क्या करते हैं, अरे ऑनलाइन ही तो है, कौन सा कोई देख रहा है, चलो लेट जाते हैं, आराम से लेट के मीटिंग करते हैं, या फिर बिल्कुल अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ करके बैठ गए जहाँ पे कि एक बहुत इंटरेक्टिव क्लास या मीटिंग होने वाला था. दैट इज नॉट अ गुड एटिकेट. आप एक मीटिंग में हैं, आपकी प्रेजेंस वहाँ जरूरी है, इसीलिए आपको अलर्ट रहना चाहिए, जैसे कि आप एक ऑफलाइन मीटिंग में या एक क्लासरूम में अलर्ट रहते हैं. बैठ के मीटिंग करिए, स्मार्टली बैठिए, स्मार्टली ड्रेस्ड अप है ही, कीप योर बैक स्ट्रेट and have a distance of at least 1.5 feet from your screen, ताकि आपकी आंखों पे भी ज्यादा जोर ना पड़े और आपका जो फेस है वो अच्छे से क्लियरली आपके कैमरा में दिखाई दे. एंड बी प्रेजेंट. ऐसा नहीं कि आप मीटिंग ऑन करके चले गए कहीं चाय पीने या नाश्ता करने या कुछ करने. दैट इज नॉट डन. इफ योर कंपनी और इफ योर क्लास, इफ योर ग्रुप अलाउज कि आप बीच में ब्रेक्स ले सकते हैं तो आप उसी समय पे ब्रेक लीजिए, अदरवाइज आप प्लीज मीटिंग में प्रेजेंट रहिए, मीटिंग ऑन करके इधर उधर मत जाइए. म्यूट योर माइक्रोफोन व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग. ये कई बार होता है कि हमारा माइक्रोफोन ऑन रहता है या ऑन हो जाता है और फिर स्पीकर की आवाज में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. सो बी वेरी केयरफुल कि आपका माइक हमेशा ऑफ रहे जब आप डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं तो, या जब आपसे डायरेक्टली बात नहीं की जा रही है तो. एक चीज इसके अंदर जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो ये कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं उस समय पे, अगर कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम्स नहीं है तो प्लीज़ अपना कैमरा ऑन करके सामने वाले से बात करिए एज एंड व्हेन पॉसिबल. लेकिन जब आप बात नहीं कर रहे हैं तो अपना कैमरा और अपना माइक्रोफोन आप ऑफ रखें तो ज़्यादा बेहतर है. कई बार ऐसा भी होता है, जैसे जूम मीटिंग्स में होता है कि आप अगर हिलते भी हैं तो फोकस आपके ऊपर चला जाता है अगर आपका माइक ऑन हो तो, इसीलिए जो मेन रिसोर्स पर्सन है उसके ऊपर से फोकस हटके आपकी स्क्रीन दिखाई देने लगती है. सो इट्स गुड टू कीप योर कैमरा ऑफ एंड योर माइक्रोफोन ऑफ व्हेन यू आर नॉट द वन हु इज टॉकिंग. इसके डायरेक्ट नीचे लिखा है गिव ग्रेस. गिव ग्रेस का मतलब जब हम ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं कभी कभी कुछ 5 या 6 सेकंड का लैग आता है कम्युनिकेशन में, तो उसमें हेलो हेलो बोलिए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, हेलो हेलो, ऐसे नहीं करना. आपने कह दिया, आप 5 सेकंड वेट करिए, हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन है उसमें कहीं कोई लैग हो और सामने वाले तक आपकी आवाज पहुंचने में कुछ सेकंड्स का फर्क पड़ रहा हो. कहिए, अगर फिर भी 5 या 10 सेकंड के बाद भी वो नहीं सुन पाते हैं तब आप पूछिए कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, और नहीं तो उनको थोड़ा समय दीजिए आपकी बात सुन के समझ के रिस्पॉन्ड करने के लिए. नेक्स्ट, प्लान फॉर एन इफेक्टिव रैप अप, विच मीन्स आपकी बातचीत पूरी हो गई, आपने जो भी डिस्कस करना था वो कर लिया. जैसे कि आज की मीटिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही सर ने बोला कि एक इंट्रोडक्शन हो गया आपका, हमारा, सबका.
उसके बाद एक वोट ऑफ थैंक्स रहेगा जो कि रैप अप सेशन रहेगा। तो हर मीटिंग में आप एक छोटा सा सेशन ऐसा रखें जिसमें कि सब लोग एक दूसरे की वेलबींग पूछें, क्या आप ठीक हैं, हैव अ नाइस डे, ओके लेट्स मीट टुमारो, कीप इट वार्म एंड कीप इट फ्रेंडली। दैट इज हाउ एन इफेक्टिव ऑनलाइन मीटिंग कैन बी कंडक्टेड, और ये सारे ऑनलाइन एटिकेट्स आपको याद रखने चाहिए। ओके, नाउ वी कम टू द एक्चुअल वर्ड नेटिकेट्स, जो कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं। ये जो 5 रूल्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये जिसको बोलते हैं ना, इट इज जस्ट अ स्क्रैच ऑन द सरफेस, विच मीन्स कि ये पूरा का पूरा नेटिकेट्स और ऑनलाइन रेपुटेशन नहीं है। हम ये 5 गोल्डन रूल्स आपको देके जा रहे हैं ताकि आप प्राइमरीली इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए, इनको यूज कर पाए। लेकिन इससे ये ना समझिए कि आपने नेटिकेट्स पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है, क्योंकि इस हर पॉइंट के अंदर बहुत सारी माइनर डिटेल्स हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए, जो कि आज समय हमें परमिट नहीं करता है इन लेंथ एट लेंथ डिस्कस करने के लिए। सो प्राइमरीली जस्ट यूज दीज 5 पॉइंट्स एंड यू शुड बी सेट, बट बी प्रिपेयर्ड टू लर्न मच मोर अबाउट दिस if we get a chance to meet again. First one is respect others' privacy and yours. जैसे कि नॉर्मल फिजिकल लाइफ में हम सबका एक रूम होता है, एक घर होता है, हम नॉक करके किसी के रूम में जाते हैं या किसी के घर जाने से पहले डोरबेल बजाते हैं, पूछते हैं फोन करके कि क्या हम आ जाएं आपके घर। उसी तरीके से ऑनलाइन वर्ल्ड में भी हमें एक दूसरे की प्राइवेसी पे एनक्रोच नहीं करना चाहिए, विच मीन्स आप किसी का भी फोन उठा के ऐसे ही मत देख लीजिए, आप किसी से उसका ईमेल का पासवर्ड मत मांगिए, नेट बैंकिंग का पासवर्ड मत मांगिए, या दिखा तेरे फोन में क्या चल रहा है, या उनके मेल्स पढ़ना, मैसेजेस पढ़ना इज वेरी बैड। अपनी प्राइवेसी और दूसरे की प्राइवेसी दोनों को रिस्पेक्ट करिए, ना ही किसी के साथ अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर करिए, ना ही किसी को फोर्स करिए उनका प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। सेकेंड पॉइंट इसी के ऊपर थोड़ा एलैबोरेट करता है, कीप योर पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट, विच मीन्स सिंपल एग्जाम्पल, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या आप कोई फिल्म देख के आए, या आपने कुछ बना के खाया, हर बार फेसबुक पे डालना जरूरी नहीं है। या आपके घर में किसी से लड़ाई हो गई, या आपने किसी को कुछ कह दिया, आपका मन मुटाव हो गया, आप डिसअपॉइंटेड हैं, हर एक चीज सोशल मीडिया पे डालने की नहीं होती है, बिकॉज द होल वर्ल्ड डज नॉट केयर अबाउट इट। आपके फेसबुक में आपके 200, 250, 300, 500 कितने फ्रेंड्स होंगे जो कि बिल्कुल भी इस बात से ताल्लुक नहीं रखते कि आपने किसी से क्या कहा और किसी ने आपसे क्या कहा। आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपके ट्रैवलिंग के वेयर अबाउट्स, आपके वेकेशन के वेयर अबाउट्स, आपके घर का एड्रेस, आपकी पर्सनल फोटोज, आपकी फैमिली की फोटोज, आपका किसके साथ कैसा रिलेशनशिप है, वो सारा प्राइवेट रखने के लिए होता है, बिकॉज इट कैन बी मेड मिस यूज ऑफ। आपकी उस इंफॉर्मेशन से कोई आपका एडवांटेज ले सकता है या कोई आपको बहका सकता है। सो इट इज ऑलवेज बेस्ट टू कीप दीज इंफॉर्मेशन विथ यू and only share it with those people who are around you 24/7, आपकी प्राइमरी फैमिली एंड आपके सबसे करीबी भरोसेमंद दोस्त, उनके साथ ही शेयर करें। नेक्स्ट इज डू नॉट ओवर पोस्ट। दिन के हर घंटे एक फोटो पोस्ट करना जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले जब वो इन्फिनिटी वॉर्स और एंड गेम मूवीज आई थी, हर व्यक्ति जो कि वो मूवी देख के आ रहा था उसके बारे में पोस्ट कर रहा था। क्या ये जरूरी था? ये बिल्कुल जरूरी नहीं था। यू जस्ट वांट टू शो कि आप फिल्म देख के आए, ठीक है, यू आर वेरी हैप्पी। अगर आप उस फिल्म की विमोचना कर रहे हैं, उसको क्रिटिक कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ अपनी राय दे रहे हैं, तब ठीक है, लेकिन जस्ट दैट आई वेंट एंड सॉ दिस मूवी, एवरीबडी इज सीइंग इट, भाई, इट इज नॉट नेसेसरी। इसी तरीके से कई बार ओवर एक्साइटमेंट में आके हम बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर देते हैं जो कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं थी। सो think before you post something. That is the 5th point, और इसके ऊपर हम अभी डिटेल में बात करेंगे। 4th point is cite your sources and give credit. इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि आपने ये पिक्चर देखा, इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है देखा, फोटो के नीचे सोर्स www.pinterest.com। मैंने साइटेशन दिया और मैंने पिंटरेस्ट को क्रेडिट दिया कि ये फोटो मैंने पिंटरेस्ट पे से उठाकर यूज करी है।
सिमिलरली और भी मेरी जो फोटोज हैं, जैसे कि ऊपर जो हमने ये ली थी, ये मैंने imature.in से ली है, तो मैंने उसका सोर्स साइट किया। ये भी मैंने imature से ली है, ये भी मैंने imature से ली है। सो citation and giving credit is necessary because again giving a real life example, जैसे आप बिना पूछे किसी की भी चीज फिजिकली नहीं उठाते, उसको क्या कहते हैं? चोरी, राइट? इसी तरीके से जब आप इंटरनेट पे किसी की बनाई हुई कोई चीज, कोई फोटो, कोई ग्राफिक्स उठाते हैं या कंटेंट उठाते हैं, अगर आप उसको क्रेडिट नहीं देते, अगर आप वो सोर्स मेंशन नहीं करते, तो वो प्लेजरिज्म कहलाता है, एंड दैट इज ऑल्सो अ क्राइम। प्लेजरिज्म के बहुत सारे डिग्रीज होते हैं, एंड प्लेजरिज्म इज एन ऑफेंस विच कैन बी पनिश्ड। सो आपको साइटेशंस देना और सोर्स बताना कि आपने कहाँ से कोई फोटो या कंटेंट लिया है, वो बहुत बहुत जरूरी है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेटिकेट्स। एंड लास्ट पॉइंट इज थिंक बिफोर पोस्टिंग समथिंग। तो हमें क्या पोस्ट करना चाहिए और क्या नहीं, कैसे फिल्टर आउट करें? ऐसे फिल्टर आउट करें। THINK, think is an acronym. T is for, ask yourself these questions before posting something. T, is it true? क्या जो मैं लिख रहा हूँ वो सच है, वो गॉसिप तो नहीं है, मुझे उसका सोर्स पता है क्या? Is it true? Then okay. Is it helpful? क्या मेरी बात से किसी को मदद मिलेगी? अगर मैंने एंड गेम देख ली तो इससे किसको मदद मिल रही है? किसी को भी नहीं, सो आई शुड नॉट पोस्ट इट। बट अगर मैं कोई अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ जिससे किसी को मदद मिल सकती है, सो दैट इज हेल्पफुल एंड आई कैन पोस्ट इट। थर्ड, इज इट इंस्पायरिंग? क्या मेरी पोस्ट किसी को इंस्पायर या मोटिवेट कर सकती है, एनकरेज कर सकती है कुछ अच्छा करने के लिए? देन ओके, गो अहेड एंड पोस्ट। फोर्थ, इज इट नेसेसरी? ठीक है, कई बार कोई बात सच भी हो सकती है, हेल्पफुल भी हो सकती है, इंस्पायरिंग भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है पोस्ट करना। हर इंस्पायरिंग और हेल्पफुल और ट्रू बात हम पोस्ट नहीं कर सकते हैं। क्या ये जरूरी है पोस्ट करना? अगर हाँ तो आप बिल्कुल कीजिए, अगर नहीं तो प्लीज मत कीजिए, इवन इफ इट इज ट्रू, हेल्पफुल और इंस्पायरिंग। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वट एवर आई एम पोस्टिंग वो ट्रू भी हो सकता है, हेल्पफुल भी हो सकता है, इंस्पायरिंग भी हो सकता है और नेसेसरी भी हो सकता है, बट इफ इट इज नॉट काइंड, if it is rude, if it is impolite, then do not post it. So keep these things in your mind. ये बहुत छोटी सी बात है, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? And is it kind? If it is not any one of these, और इसमें से एक भी चीज अगर वो आपका पोस्ट नहीं होने वाला है, तो आप प्लीज उसको पोस्ट ना करें। This is one very important rule of posting something online. So with this, I come to the end of my presentation and end of my talk, and I'm very happy that I got this chance, and thank you so much for being so patient and so wonderful as an audience. हेलो मैम, हाँ जी, ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है? सॉरी, क्या फिर से पूछ सकते हैं? ईमेल और जीमेल। जीमेल एक तरीके का ईमेल है, और ईमेल? ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब डिजिटल मेल, जो कि आप इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं, और जीमेल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जैसे याहू मेल, हॉटमेल, ये सारे हैं। वैसे ही ईमेल एक कम्युनिकेशन चैनल है और जीमेल एक ब्रांड है कम्युनिकेशन चैनल का। जैसे कि आप पूछे स्कूल और सागर पब्लिक स्कूल में क्या डिफरेंस है, तो स्कूल एक जगह है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और सागर पब्लिक स्कूल एक ब्रांड है एक स्कूल का, दैट वे। ओके मैम, थैंक यू मैम, हैव अ नेक्स्ट टाइम मैम। आगे भी थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। विनोद सर, थैंक यू मैम। मैम आगे भी आप, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आगे भी क्लास चलेंगी ना मैम आप? मैम हेलो मैम, आगे भी ऐसी वेबिनार लेंगे Please मैम। mute yourself. एक मिनट सब रुकिए, Please mute yourself. सब लोग प्लीज अभी मीटिंग लीव करने से पहले खुद को म्यूट कीजिए, 2 मिनट का समय दीजिए। आई थिंक आपकी कोई भी मैम आप बहुत अच्छा समझाती हो। एक्सपर्ट लेक्चर, एक मिनट अभी सब लोग शांत रहिए। राधा आप इसमें फीडबैक लिंक छोड़ दीजिए तब तक। कोई भी एक्सपर्ट लेक्चर में किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है 1, 2 या कुछ लेक्चर्स के लिए, ठीक है ना? आप अपना फीडबैक दीजिए, उस आधार पे हम लोग मैडम और मैडम जैसे और जो दूसरे
एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, उनको हमारे प्रोग्राम्स में जरूर इनवाइट करेंगे। और उसमें जहां हमें हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के अलावा दूसरे स्टूडेंट्स को ऐड करने की बारी आती है, हम आपको जरूर आपके टीचर्स के माध्यम से, आपके प्रिंसिपल्स के माध्यम से सूचित करेंगे। आई होप सभी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ में भी और अपने करिकुलम रिलेटेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे मिली होगी और ये आपको जरूर काम में आएगा। आप अपने टीचर को भी इस आज की जो एक्सपर्ट लेक्चर है इस पे एक नोट बनाकर उनको दिखा सकते हैं कि नेटिकेट्स और ऑनलाइन इमेज मेकिंग, ईमेल राइटिंग पर मैंने ये कुछ बातें सीखी हैं और मैं इसको इस तरीके से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूं या करूंगा या करना चाहता हूं। मेरे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने क्लियर बोला है, 5 डिपार्टमेंट की स्टूडेंट्स मुझे 1 पेज नेटिकेट्स, जिसमें आधा पेज नेटिकेट्स पर और आधा पेज ईमेल राइटिंग पर अपना एक नोट लिखकर भेजेंगी आज के एक्सपर्ट लेक्चर और वर्कशॉप के बेस पर कि उन्होंने क्या सीखा, क्या उन्हें समझ में आया इस बात को लेके। राधा, इस कॉपी लिंक को एक बार और पेस्ट करके फिर से आप डालो। आप चैट बॉक्स में जाएंगे तो ऊपर आपको थोड़ा सा राधा यादव जो हमारी स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है उन्होंने एक फीडबैक लिंक डाली है, इस पर आप क्लिक करके सभी स्टूडेंट्स अपना फीडबैक जरूर दें और फीडबैक देने के बाद ही मीटिंग से लीव करें। ये मीटिंग कुछ देर के लिए और अभी चालू है और विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। बट मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा शिवानी को कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए वो अपनी बात रखें। थैंक यू विनोद सर, थैंक यू सो मच मैम। आपने आज नेटिकेट्स यानी कि इंटरनेट एटिकेट्स के रिलेटेड हमें बहुत सारी चीजें बताई आज। लाइक आपने डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में बताया, इंटरनेट मैच्योरिटी, इंफोटेनमेंट वर्ड यूज किया आपने यानी कि इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। देन आपने ऑनलाइन रेप्यूटेशन बताया, ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया एंड ईमेल राइटिंग के बारे में आपने हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप बताई है जो मतलब अभी तक हम ईमेल लिख रहे थे पर हमें इतना ज्यादा वो उसमें ये बारीक चीजों के बारे में पता नहीं था जो हम अभी तक बहुत सारी गलतियां कर रहे थे। लाइक ईमेल आईडी का नेम बहुत केयरफुली चूज करना चाहिए जो कि हम याद नहीं रखते हैं, कुछ भी बना देते हैं। एंड सब्जेक्ट लाइन क्रिस्प और क्लियर होनी चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए ईमेल आईडी, और उससे रिलेटेड आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज हमें बताई। देन अगेन आपने ऑनलाइन मीटिंग एटिकेट्स हमें बताए, तो उसके लिए उससे बहुत ज्यादा हमें हेल्पफुल रहा वो कि हमें अर्ली ज्वाइन होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड अप होना चाहिए। देन स्टे सीटेड और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपने बताई। लास्ट में आपने 5 गोल्डन रूल्स भी बताए हैं जो इंटरनेट एटिकेट्स के हैं, लाइक रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी एंड देन कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट ही रखनी चाहिए, सबको सोशल नहीं करना चाहिए। जो रेगुलर हम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे पोस्ट करते हैं वो नहीं करना चाहिए, जो जरूरी है सिर्फ उतना ही डाले। डू नॉट ओवर पोस्ट, हर थोड़ी थोड़ी देर में पोस्ट अपडेट करने की जरूरत नहीं है। एंड साइट योर सोर्सेज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी जब पीपीटीज क्रिएट करते हैं तो हम सोर्स को क्रेडिट देना भूल जाते हैं, जो हम नहीं करते हैं। और जो आपने काफी इससे रिलेटेड ये एक क्राइम भी है, ये भी आपने बताया कि किसी के हम अगर कोई चीज इमेजेस यूज कर रहे हैं तो हमें उन्हें जरूर वो देना चाहिए क्रेडिट। देन लास्ट दिया था कि थिंक बिफोर यू पोस्ट समथिंग। ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार कुछ चीज ऐसी पोस्ट कर देते हैं जो हम सोचते नहीं है, बट जब लोगों के रिव्यूज आते हैं, ओपिनियंस आते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो हमने जो पोस्ट किया था वो शायद सही नहीं था या गलत था। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रेशियस टाइम and for sharing your superficial and extensive knowledge with us. Thank you so much. Thank you so much, Shivani. Okay, thank you very much once again, ma'am, from my side and from the side of Government Women's Polytechnic College. I hope all the students have given the feedback by clicking on the feedback link, and we promise you to bring such type of useful lectures either every Saturday or whenever it is possible as per our convenience and the timetable. Thank you very much, and you may officially disconnect the call. Thank you very much, everyone. Thank you. Thank you. One minute, ma'am. I would also like to thank Dr. Vinod Gupta, sir, our coordinator, who gave us full support to make this workshop successful and beneficial for the students. So thank you so much, sir. And lastly, I would like to extend my gratitude to everyone who I appreciate you being here on behalf of TPO and GWBC.
Thank you so much again for joining us today. Thank you. Welcome. Thank Okay. you. Bye bye. Have a nice day, everyone. Bye. Thank you.